وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کی فیصل آباد کے چک 72 کے لالی پور آمد، مسلم لیگ کی کارکنان نے رانا ثناء اللہ کو خوش آمدید کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا چک 72 گلالی پور پہنچنے پر کارکنوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو جو ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کرنل شیر خان کے مجسمے اور شہداء کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ عمران خان نے نوجوانوں میں نفرت پھیلائی، جو نفرت کا بیج بویا اسی کی نظر عمران خان خود ہوا۔ آج زمان پارک میں اکیلا بیٹھا ہے۔ عمران خان مذاکرات کی بات کر رہا ہے، لیکن ہم شہداء کی تکریم کو ٹھیس پہنچانے والوں سے کیسے مذاکرات کریں گے؟ اب جب یہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، اب اپنی نفرت کا خود شکار ہو رہے ہیں، پوری قوم جو ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح سے متحد ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جی مذاکرات کریں، اور بھائی تمہارے ساتھ ہم مذاکرات کریں تو وہ شہداء کی جو فیملیز ہیں وہ پھر ہمیں چھوڑیں گی، ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ وہ جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے جان دی ہے تو ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ کیوں کیا گیا؟ رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے رہنما 12 دن جیل میں رہنے کے بعد پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔ سندھ کا سابقہ گورنر عمران اسماعیل 13 دن جیل رہنے کے بعد کہتا ہے عمران خان اللہ حافظ، پی ٹی آئی خدا حافظ۔ آج ان کا یہ حال ہے کہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی 8 دن قید تنہائی کاٹی ہے، اور 8 دن کے بعد اب میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں۔ کوئی آگے کہتا ہے کہ جی 12 دن، میں نے کہا کہیں 12 سال تو نہیں ہے، 12 دن میں نے جیل کاٹی ہے، 12 دن کے بعد جو ہے وہ میں اب چھوڑ رہا ہوں پی ٹی آئی کو، اور میں جو ہے وہ اب سیاست کو ہی خیر بات کہہ رہا ہوں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران دور میں مجھ پر کیسز بنائے گئے، مگر میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا رہا۔ آج مہنگائی صرف عمران خان دور میں کیے گئے IMF کے ساتھ معاہدے کی وجہ ہے۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41، فیصل آباد۔ پی ٹی آئی کی ڈوبتی کشتی میں ایک اور سوراخ، جھنگ سے تحریک انصاف کے سابق MA رائے تیمور بھٹی نے بھی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا۔ پی ٹی آئی کی ڈوبتی کشتی میں ایک اور سوراخ، جھنگ سے تحریک انصاف کے سابق MPA رائے تیمور بھٹی نے بھی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا۔ رائے تیمور بھٹی نے نیشنل پریس کلب میں پی ٹی آئی رہنما کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ تیمور بھٹی کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو مثالی سزائیں ملنی چاہیے۔ فیصلہ کیا ہے، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں۔ ریاست ہماری ماں ہے، ہماری ریاست کے جو تمام ادارے ہیں، خاص طور پہ ہمارے دفاعی ادارے، ہمارا دفاع مضبوط ہے، ہماری ریاست قائم ہے تو ہم سب قائم ہیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ یہ جو پچھلے دنوں میں واقعات ہوئے، اور اگر ایسے واقعات کو یہاں پر نہ روکا گیا تو یہ تو ایک سیاست میں روش بن جائے گی کہ جب کوئی آئے ریاست کے دفاعی اداروں سے سب سے ٹکر لیں اور اپنی ریاست کو کمزور کر دیں۔ دوسری جانب جھنگ سے ہی سابق MPA شیخ یعقوب نے بھی پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہہ دیا۔ شیخ یعقوب کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت، پارٹی ٹکٹ واپس کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ شیخ یعقوب حلقہ PP 126 سے PTI کے ٹکٹ ہولڈر تھے۔ پارٹی سے علیحدگی کے حوالے سے شیخ یعقوب نے ویڈیو پیغام میں کہا، PTI نے نیا پاکستان بنانے کے لیے ٹکٹ دی، افسوس ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے جناح ہاؤس پر حملے کیے گئے، PTI نے پاک افواج کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ شیخ یعقوب نے PTI کی ٹکٹ واپس کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ فیصل آباد میں جلد پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی، کمشنر سلوت سعید نے نوید سنا دی، 4 رکنی کمیٹی تشکیل کرتے گئے۔ فیصلہ آبادیوں کے لیے بڑی خوشخبری، جلد شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی۔ کمشنر سلوت سعید نے اندرون شہر ٹرانسپورٹ سروس شروع کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن طارق نیازی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد سعید مان، سیکرٹری RTA خالد بھٹی اور فٹ سے محمد راحت پر مشتمل 4 رکنی کمیٹی تشکیل۔ پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کے حوالے سے تجاویز مانگ لی۔ کمشنر سلوت سعید کا کہنا تھا کہ شہریوں کو سفر کی محفوظ، آرام دہ اور سہل سروس فراہمی ٹارگٹ ہے۔ 4 رکنی کمیٹی ایک ہفتے میں
रूट्स का तयन करने और अंदरूनी शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए प्लान पेश करेगी। जल्द अर्बन ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का इजलास बुलाया जाएगा। शहर में 250 बड़ी बसों और 1000 हाईएस गाड़ियों से मुसाफिरों को सहूलत देने की गुंजाइश है। सिटी टर्मिनल और जनरल बस स्टैंड से अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट जल्द शुरू कर दी जाएगी। फिर जराये का कहना था कि ताहाल अर्बन ट्रांसपोर्ट की 11 रूट्स पर 555 गाड़ियां चल रही हैं। सिटी ट्रांसपोर्ट टर्मिनल में इंट्रा सिटी सर्विस के लिए 5 बसेस मौजूद हैं। सेक्रेटरी आरटीए एक हफ्ते में अंदरूनी शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार करेंगे और अंदरूनी शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के ख्वाहिशमंद ट्रांसपोर्टर्स को पेशकश देंगे। निगरान हुकूमत झंग शहर की महरूमियां खत्म करने के लिए कोशां। शहर के कोने कोने में मौजूद सीवरेज मसाइल के हल का फैसला। वर्ल्ड बैंक के ताउन से शहर में सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट। झंग में सड़कों की टूट फूट और सीवरेज के मसाइल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इकदामात का आगाज। शहर में सीवरेज मसाइल खत्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक के मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ। वर्ल्ड बैंक के मंसूबे में शहर के बेशतर इलाकों से पानी की निकासी मुमकिन होगी। बाकी इलाकों से सीवरेज मसाइल के हल की जिम्मेदारी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को सौंप दी गई। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के डायरेक्टर डिजाइन सैयद सौलत ने झंग का दौरा किया। सीवरेज की नई स्कीमों के हवाले से वर्ल्ड बैंक, पंजाब सिटीज प्रोग्राम और जिला इंतजामिया के अफसरान से मीटिंग करके तजावीज ली गई। शहरियों ने मेगा प्रोजेक्ट्स पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ये लिंक रोड नीचे उतर रहा है, सारा बंद होता है, जरा बारिश हो जाए, गटर बंद हुए पड़े हैं, पानी इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है मोहल्ले के लिए भी और इस रोड के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बनी हुई है। इतने दिनों से यहाँ पानी खड़ा है, कोई किसी किस्म की कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई किसी किस्म का निज़ाम नहीं है कि इस सीवरेज को ठीक किया जाए। पहले जो प्रोजेक्ट आए वो वापस जाते रहे। इस दफ़ा निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जंग के लिए जो प्रोजेक्ट्स मिले, जो बजट मिला है, उस हवाले से अगर मैं बताता जाऊं तो ये सुनने में आ रहा है कि 2 माह तक जो है ये सीवरेज के जितने भी मसाइल हैं ये हल होंगे और इसके बाद जंग के लिए जो बाकी रोड्स वगैरह हैं या टूट फूट का शिकार हैं, इसके लिए 6 माह तक जो है वो भी काम शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत का झंग के मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। बरसों से टूट फूट का शिकार फैसलाबाद रोड की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। कायम मकाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद आरिफ कुरैशी ने दौरा किया। एक्सियन हाईवे असर शाहीन भी दौरे में हमरा थे। दोनों अफसरान ने फैसलाबाद रोड पर जारी काम का जायजा लिया। हमारी पूरी कोशिश है कि झंग के अंदर जितनी भी सड़कें हैं उन सबको हमने कोशिश की कि एडीपी में डलवा दें और जिन सड़कों की रिपेयर हो सकती है हम M&R के थ्रू जो है वो रिपेयर करवा रहे हैं ताकि झंग के साथ जितनी भी मुल्का सड़कें हैं झंग के शहरियों को उन पर बड़ी आसानी से सफर की सहूलियात मुयसर आ सकें। डायरेक्टर डिजाइन सैयद सौलत नई स्कीमों पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट की रोशनी में झंग के लिए तरक्याती मंसूबों पर काम हो सकेगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फेस्को की सुस्ती झंग में तरक्याती मंसूबे ताखिर का शिकार। फेस्को के खंबे आड़े आ गए। महकमा फेस्को की सुस्ती के सबब झंग में तरक्याती मंसूबा खटाई में पड़ने का खदशा। भक्कर रोड पर फेस्को के खंबे सड़क की तामीर के आड़े आ गए। खंबे जो है ना ये सड़क के दरमियान में है। दिन में तो चलो कोई बात नहीं, मुश्किल से गुजारा कर लेते हैं। रात के वक्त इधर लाइटें भी नहीं होती, अंधेरा होता है, सड़क के दरमियान में खंबे लगे हुए हैं। एक्सीडेंट के काफ़ी शदीद चांसेस होते हैं। कई दफ़ा लोग इधर लगे भी हैं खंबों में। DHQ अस्पताल की इमरजेंसी की तामीर फेस्को की तनसीबात के सबब रुक गई। DHQ अस्पताल की इमरजेंसी की तामीर और भक्कर रोड को कारपेट करने का काम ठप हो गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने फेस्को को 48 घंटों में खंबे हटाने के लिए काम शुरू करने की डेडलाइन दे दी। जबकि झंग रोड पे जो है खासतौर पे जो हमारी झंग जो है बक्खर रोड पोल्स ऑलरेडी जो है अभी दरमियान में है, किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। उनको हदायत दे दी गई है कि विदिन वो 48 आवर्स जो है वो पोल्स को जो वहाँ से रिमूव करेंगे। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं तरक्याती मंसूबों की तकमील में हायल रुकावट को दूर करने के लिए निगरान वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे। कैमरामैन अली और अजीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में सड़कों की बहाली के लिए 70 करोड़ से जायद के फंड्स जारी, मगर महकमों की नाअहली के बायस खस्ता हाल सड़कों में बेहतरी न हो सकी। फैसलाबाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर महकमों की तवज्जो का मुंतजिर। सड़कों की बहाली के लिए फंड्स मौजूद मगर मंसूबे अभी तक मुकम्मल न हो सके। फैसलाबाद CC1 में 7 करोड़ 57 लाख रुपए लागत के रोड सेक्टर मंसूबे अधूरे हैं। गुज्जर बस्ती था मॉडल टाउन से मुल्हिका सड़कों की बहाली पर 8 करोड़ 48 लाख न खर्च हो सके। फैसलाबाद CC 20, 21 और 22 में 12 करोड़ के फंड्स भी सड़कों की बहाली पर न लग सके। कमिश्नर ऑफिस से मुल्हिका लिंक्स रोड की बहाली पर 13 करोड़ न खर्च हो सके। शहरी कहते हैं शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। 3 साल से सड़कों की बहाली का काम शुरू न होना इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मिट्टी इन्ना है कि साफ को नहीं है। तकरीबन इस सड़क नूं कम से कम कुछ 3 तो 4 साल हो गए नहीं, जस्ट इदा ही हुण माड़ा जिहा पत्थर पै गए। वो पत्थर पैन की वजह ना बस बाकी को पत्थर पा के माड़ा जिहा छड़ता है, फिर लापरवाही है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, कोई गलबात नहीं हो रही।
CC 49 और 50 में गलियों सड़कों की बहाली के लिए 6 करोड़ रुपए का फंड मौजूद है। CC 24, 25 और 26 में स्ट्रीट्स बहाली पर 15 करोड़ खर्च न हो सके। खतीजा हस्पताल ता टावर रोड पर भी 9 करोड़ 60 लाख रुपए ना लग सके। जनाब क्लब ता कमालपुर इंटरचेंज तक 45 करोड़ रुपए की लागत से सरगोदा रोड की बहाली भी नामुकम्मल है। कैमरामैन इरफान के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। 5 करोड़ रुपए से ज़ायद तरक्याती स्कीमों के ठेके अब ई टेंडरिंग के जरिए मिलेंगे। 5 करोड़ रुपए से जायद तरक्याती स्कीमों के ठेके अब ई टेंडरिंग के जरिए मिलेंगे। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट ने ई टेंडरिंग का नफाज कर दिया। फैसलाबाद समेत सूबा भर में ठेके ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दिए जाएंगे। रहनुमाई के लिए कॉल सेंटर्स कायम कर दिए गए। सेक्रेटरी C&W का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वजीर आला, PND, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब को मरासला। ई टेंडरिंग पोर्टल रिश्वत और सिफारशी कल्चर के खात्मे के लिए कायम किया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मंसूबों की टेंडरिंग को भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के जरिए मुंसलिक किया जाएगा। सेक्रेटरी सी। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में अच्छी खबर। फैसलाबाद डिवीजन में बरामदात से हासिल होने वाले इनकम टैक्स में रवा माली साल के दौरान 26% इजाफा हो गया। फैसलाबाद डिवीजन में बरामदात से हासिल होने वाले इनकम टैक्स में रवा माली साल के दौरान 26% इजाफा हुआ है। गुज़श्ता एक माह के दौरान एक्सपोर्ट से इनकम टैक्स वसूलियां 22% बढ़ गईं। एक महीने में 549 बिलियन रुपए इनकम टैक्स वसूल हुआ। रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर बरामदात से 5,464 मिलियन रुपए इनकम टैक्स वसूल कर लिया गया। गुज़श्ता बरस इसी अरसे में एक्सपोर्ट सेक्टर से इनकम टैक्स वसूली 4.3 अरब रुपए रही थी। FPR हुक्काम के मुताबिक रवा माली साल के टैक्स अहताफ की तकमील के लिए तमाम तर वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की टैक्स वसूली 65 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी है, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 27% ज्यादा है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए एक के बाद एक बड़ा मसला। स्टेट बैंक के अहकामात की रोशनी में कमर्शियल बैंक के जुर्मानों ने एक्सपोर्टर्स को परेशान कर दिया। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए एक के बाद एक बड़ा मसला। स्टेट बैंक के अहकामात की रोशनी में कमर्शियल बैंक के जुर्मानों ने एक्सपोर्टर्स को परेशान कर दिया। मुकर्ररा तारीख में गाहक की जानिब से रकम की अदायगी न होने पर एक्सपोर्टर्स को ही जुर्माने के अहकामात जारी कर दिए गए। आलमी के साथ बाजारी के जवाज पर ताखीर का शिकार होने पर परेशान एक्सपोर्टर्स को लेने के देने पड़ गए। स्टेट बैंक ने ताखीर से रकम आने पर एक्सपोर्टर्स को जुर्माने के अहकामात दे दिए। 30 दिन ताखीर पर 3%, 31 से 60 दिन ताखीर पर 6%, 61 से जायद दिन पर 9% जुर्माना देना होगा। स्टेट बैंक की जानिब से जारी सर्कुलर पर एक्सपोर्टर्स परेशानी में मुब्तला हो गए। एक्सपोर्टर्स को पहले ही ताखीर से अदायगी की परेशानी का सामना था। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से जुर्माना वापस लेने का मुतालबा कर दिया। घी और कुकिंग ऑयल के कारोबार में बड़ी सेल्स टैक्स चोरी का इंकशाफ। FPR ने फैसलाबाद में घी और कुकिंग ऑयल के कारोबार से वाबस्ता सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड अथॉरिटी 100 अफराद का सुराग लगा लिया। FPR हुक्म में कहना था कि अफराद ने रवा माली साल के दौरान करोड़ों रुपए मालियत का घी और कुकिंग ऑयल खरीदा। कारोबार पर कोई सेल्स टैक्स जमा कराया, ना ही कोई रिकॉर्ड दिया गया। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की खरीदारी इम्तिहान बन गया। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को सस्ते आटे के हसूल में मुश्किलात। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर गर्मी में घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। कहते हैं सारा दिन इंतजार के बाद भी सबको आटा नहीं मिलता। कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। पहले ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਰੋਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਦੋ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 650 ਦੀ 500 ਹੀ ਲੈਣੇ ਗੁੱਠੀ ਆਟੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਲਓ 1500 ਸੌਦਾ ਫਿਰ ਲਓ ਗੁੱਠੀ ਆਟੇ ਫਰੀ ना हटिए ये ना पैसा ना हो रहा। खवातीन कहती हैं सुबह से दोपहर तक आटे का इंतजार करते हैं, मगर इसके बाद भी यकीन नहीं होता कि आटा मिलेगा या नहीं। खवातीन ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की बजाय आम दुकानों पर सस्ता आटा मिलना चाहिए। 40 थैले आए थे, 40 आने का जब हमारी बारी आई उस टाइम खत्म हो गया। धूप में खड़े जल जुल के वैसे ही चले गए, प्यासे वे दिल के मरीज हैं। तो आटा तो आना चाहिए, दुकानों पे दे दें, इधर स्टोरों पे ना दें। 8 बजे के आए हुए हैं तो पानी का गिलास भी नहीं मिल रहा और बदतमीजी करते हैं इतने, यहाँ से जलील कर आगे चले जाते हैं। मेहरबानी होगी यहाँ से बंद कर स्टोर से और दुकानों पे देना शुरू कर दे, हम इज्जत के साथ वहाँ से लेके खाना जा सके। शहरी कहते हैं हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करे। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में रूल ऑफ लॉ की अहमियत को उजागर करने के लिए सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार का एहतमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से किया गया।
सेमिनार में सेक्रेटरी बार राना एम ए बाबर खान, साबिक नायब सदर FCCI हाजी मोहम्मद आबिद, मेंबर पंजाब बार पियाम मेहरान ताहिर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड राव इकबाल भी शरीक थे। UIG स्कूल सिस्टम कमालपुर फैसलाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। UIG स्कूल सिस्टम कमालपुर फैसलाबाद में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। तलबा ने वालिदैन को खराज तहसीन पेश करने समेत मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की। तालिबात ने सिन्फ़े आहन के मौजू पर शानदार परफॉर्मेंस भी पेश की। चेयरमैन HRIST मियां अनवर जाहिद और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर UIG स्कूल सलमान जावेद सरवर ने खसूसी शिरकत की और तलबा में इनामात तकसीम किए। प्रिंसिपल मिस सुमेरा, असातिज़ा और वालिदैन का कहना था कि बच्चों में खुद एतमादी पैदा करने के लिए ऐसे इवेंट्स बहुत जरूरी हैं। तलबा ने साल भर की मेहनत पर इनामात मिलने पर खुशी का इजहार किया। हमारा फंक्शन बहुत अच्छा रहता है, हर साल जब भी होता है बहुत अच्छा होता है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2nd पोजीशन लिया है और मैं क्लास 9 से हूँ और बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखी है, सारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी। इस तरह के प्रोग्राम्स हो तो बच्चों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसलिए जब मैं पहले स्कूल में थी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, अब यहाँ पे आगे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। तकरीब में सूफी कलाम भी पेश किया गया। असातिज़ा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और बच्चों की हौसला अफजाई की। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा का ग्रीन सर्कल फार्म्स का दौरा, तलबा को किचन गार्डनिंग के बारे आगाही दी गई। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा ने शजरकारी और किचन गार्डनिंग की तरबियत हासिल करने के लिए ग्रीन सर्कल फार्म्स लासानी गार्डन का विजिट किया। तलबा और तालबात को किचन गार्डनिंग बारे बताया गया और इन्हें फील्ड विजिट भी करवाया गया। यहाँ पे इन्होंने हमें किचन गार्डनिंग के बारे में और गर्ल्स कैसे अपने घर में भी गार्डनिंग कर सकती हैं और प्लांट्स और ट्रीज वगैरह ग्रो कर सकती हैं। यहाँ पे हमने इनके काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स भी देखे हैं, ट्रीज भी देखे हैं और इन्होंने हमें सीड्स भी दिए। उन्होंने अपने फार्म में टोमेटोज, ग्रीन चिली और सबसे जो अच्छी हमें चीज़ लगी वो स्टीविया। स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है, ये जो आजकल डायबिटीज़ के ज़्यादा पेशेंट है ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये जो चीज़ हमारी मेडिकल प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। FMU से डॉक्टर अदरीस शानी भी तलबा के हमरा थे जिन्होंने दौरे को अहम करार दिया। फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और वेजिकल्चर के बारे में डिफरेंट जो यहाँ पे प्लांट्स हैं इसके बारे में इन्होंने हमें अपडेट किया है। तो ये आई थिंक ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इसमें ये है कि किचन गार्डनिंग के वाले से इसमें हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सीखा है। ग्रीन सर्कल फार्म से डॉक्टर साजिद सिंधु ने विजिट करवाया। इनका कहना था कि हम अपने घरों में भी आसानी से किचन गार्डनिंग करके ताज़ा फल और सब्जियां हासिल कर सकते हैं। आपके घर में, आपके लॉन में, आपकी छत में, आपके बाहर किसी जगह पे भी थोड़ी सी जगह मिलती हो, आपके पास गमला मौजूद होना हो, शॉपिंग बैग मौजूद हो, उसके अंदर ही मिट्टी डाल के आप जो है वो सब्जियां उगाने का शौक पूरा कर सकते हैं। और बराए करम सब्जियां ज़रूर उगाएं क्योंकि वो फल के साथ साथ फूल भी देती हैं। और हमने यहाँ पे लासानी गार्डन्स में फैसलाबाद में एक बड़ा खूबसूरत सा किचन गार्डन बना के लोगों को दिखा दिया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अढ़ाई केनाल पर किचन गार्डन बनाने का भी अज़म जाहिर किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। नन्हे बच्चे हैट सजाने में माहिर, पेन स्कूल के बच्चों में हैट सजाने का मुकाबले का इनेकाद। तकरीब में यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में से प्रोफेसर नूरुल ने खसूसी शिरकत की। जंग के पेन स्कूल में मौसम गर्मा की मुनासबत से खूबसूरत हैट्स की नुमाइशी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में शरीक तलबा और तालबात की जानिब से मुख्तलिफ इक़साम के हैट ज़ेबतन किए गए। बेशतर हैट्स को तलबा ने खुद सजाया। मुकाबला जात में काउबॉय हैट, फेडोरा, बाउलर, पनामा और दीगर इक़साम के हैट पेश किए गए। जजिस की जानिब से हैट्स की खूबसूरती की बिना पर नंबर्स दिए गए। इस फंक्शन का मेन पर्पस बच्चों में यूनिकनेस, क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाना था और आई थिंक सो कि इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ एजुकेशन और इन्हें होते रहना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की प्रोफेसर नूरुल ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि ऐसे प्रोग्राम से बच्चों की सलाहियतों में निखार आता है। Such type of competitions they actually add into the confidence of children. We should arrange such type of extracurricular activities so that they can learn how to compete in their life. I appreciate very much because it is colorful and healthy for kids. तकरीब के अख्ताम पर तलबा में नकद इनामात के अलावा तारीफी असनाद भी तकसीम की गई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, Studio 41 जंग। ये स्टूडियो से फिलहाल कितना है।